2026 ग्रेड हो, तुम डीटीयू में हो जो टायर 2 कॉलेज में आती है, राइट? राइट। तो बात यह है कि अगस्त से लेके सितंबर तक, like from August to September, good companies are going to come like Microsoft, Amazon, etc. And after that, many product-based startups and good companies of 10 to 15 LPA range will come after September, right? Right. So the thing is that most of these companies will involve the OA round, okay? And you will have to give the OA in the college premises or by yourself online at some place. So you need the skills to crack OA. What do you need? Skills to crack the OA. So see, in India, our course is the best in the country because it involves like basic to hardest level DSA plus OA plus CP, and you need this thing the most as of now. Clear? Our DSA plus OA plus CP course is best in the country because it covers the DSA stuff also till the hardest level. Then now all the companies ask OA. In OA they ask you hard unseen DSA questions, okay? Which you have never seen before, or new patterns, and they make up big stories. So you don't need to fear them. All you need is practice and training for it. Like there is 1,000 hour content of OA in our pro plan of DSA OA CP. So make sure you do it completely, and then the CP stuff also you need to do. So in general, I will say that to boost your DSA plus OA plus CP skills, you should complete this plan. Is that clear to you, student? Now listen to me very carefully. You don't have to do it like normal people. Like if you go to the course, you will find link 1 and you will find link 2, and then you will find a document. You need to go through them because in your case you only need to complete 20% pro plan tactfully, okay? And if that is completed, then you can do things ahead. We are following Pareto's principle. Like basically what I'm trying to say is that if you watch this much percentage of all the sessions and all the questions from DSA OECP course, then you are ready for 80% of the company's OA and interviews. Got the point? Clear? So I want you to do this, and from apart from that, na side by side, please start doing Kumar ke DSA interview sheet. So like these course prepares you for both OA and interview, but it is heavily focused on OA and CP. So साइड बाय साइड बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम मेरी डीएसए की जो न्यू शीट लॉन्च हुई है उसके अंदर वो भी तुम करना चालू कर दो। क्लियर? अब एक दूसरी बात लिखो। ऑलवेज स्पीक लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली इन द इंटरव्यू। जब भी तुम्हारा डीटीयू में या ऑफ कैंपस इंटरव्यू होगा तो कैसे स्पीक करोगे? यस सर जोर से बोल के दिखाओ मुझे एक बार। ऐसे ही जोर से और एकदम क्लियरली तुमको इंटरव्यू में बोलना है ताकि इंटरव्यूअर तुमसे इंप्रेस्ड रहे। ये वाली चीज भी तुमको क्लियर हो गई। अब डीएसए के लिए लिखो ना, हर एक टॉपिक का प्लीज सेपरेट सेपरेट रिवीजन टॉक बनाना है। क्या बनाना है? लाइक डीएसए में लाइक मोटा मोटी बात करें, इफ आई रफली डिवाइड देयर विल बी एटलीस्ट 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक्स का तुम सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बना दो, हर टॉपिक का सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट। रिवीजन डॉक्यूमेंट तुमको बहुत टैक्टफुली बनाना है। कैसे बनाना है तुमको समझा देता हूँ। समझो ये तुम्हारा रिवीजन डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर समझो हैशिंग का रिवीजन डॉक्यूमेंट बन रहा है। किसका बन रहा है? तो तुमको ना ऐसे दो पार्ट कर लेना चाहिए, ये इजी वाला पार्ट और ये मीडियम हार्ड वाला पार्ट। जब भी तुम अपनी लाइफ में कोई क्वेश्चन करते हो, तुमको पता चल जाता है ये इजी वाला क्वेश्चन है, तो बस इजी में बस क्वेश्चन का लिंक डाल के छोड़ दो और कोड का लिंक डाल के छोड़ दो। कोड लॉजिक समझाने की जरूरत नहीं खुद को उसमें। क्लियर? तो मीडियम हार्ड है उसमें प्लीज क्वेश्चन का लिंक भी डालो और कोड का लिंक भी डालो और 4-5 लाइन में कोड लॉजिक भी लिखोगी, मतलब मेन लॉजिक लिखोगी क्या वो पॉइंट था जो तुम्हारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था या पेनफुल था, या जो तुमको चीजें बातें याद रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो एनालिसिस बनता ही होगा, राइट? ऐसे करके तुमको एक पर्टिकुलर रिवीजन डॉग बनाना है, और जब रिवीजन कर रहे होंगे ना तब मैं तुमको गाइड ये करूंगा कि हमेशा मीडियम हार्ड का ही रिवीजन करना है। क्लियर? इजी में वो चीजें होनी चाहिए जिनको तुमको कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, फिर भी क्यों डाल रहे हो सकता है कि कोई बहुत महीनों सालों का गैप ले ले और उसको इजी भी हार्ड पढ़ने लग जाए, तो इसलिए इजी सेक्शन अलग बना के रखा है। ठीक है? ताकि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्लमजी ना हो जाए। क्लियर? ठीक है, ये वाली चीज क्लियर। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लीज डेली लाइव क्लासेस जाओ। तुम डेली लाइव क्लासेस नहीं जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आज तुमको मालूम है ये अभी जो आज जो अभी रिसेंट जो न्यू सेशन चालू होने वाला है, उसके पहले मैं एक अमेजोन ओए का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था और मैंने ग्रुप में सबको बोला था, याद आ रहा है कि प्लीज वो वीडियोस तुमने देखा? अच्छा तुम वो क्लास में आए थे, पता है ना मैं क्या कर रहा था? ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इज इक्वल टू द लेंथ, राइट?
इसका कोड प्लीज लिख के ग्रुप में भेज देना, क्लियर। फिर उसके बाद पता है ना हमको दूसरा वर्डनेल कौन सा करना है, वो भी बहुत सिंपल है। सम मॉड के शुड बी इक्वल टू लेंथ, गॉट इट, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमको करनी है, तो रोज प्लीज सेशन में आओ और सेशन के बाद कोड सबमिट करो। अगर रोज सेशन के बाद कोड नहीं सबमिट करो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर। अब मेरी इन जनरल क्लासेस कब होती है, मंडे टू संडे होती रहती है। ओए की क्लासेस, सीपी की क्लासेस और डीएसए इंटरव्यू लेवल की क्लासेस होती रहती है। जब भी कोई कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट होता है या फिर कोई लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट होता है तो इमीडिएटली वो कॉन्टेस्ट के 15 मिनट्स बाद ही कॉन्टेस्ट के भी सेशन के लिंक्स आजकल ग्रुप में आने लगे, तुमने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो जैसे कि आज कोड फोर्सेस D3 कॉन्टेस्ट है, यस और नो। तो जैसे ही ये कॉन्टेस्ट हो इसके 15 मिनट बाद सेशन की लिंक आएगी, तुम प्लीज चले जाना वहां पर, समझे बात को। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। और हर सेशन के बाद कोड सबमिट करना है और अपने रिवीजन टॉप में डालना और रिवाइज करते रहना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लीज लिख दो, बिफोर एनी इंटरव्यू और टेस्ट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कुमार के सर। मुझे पहले ही बोल देना सर ये कंपनी का इंटरव्यू, ये कंपनी का टेस्ट है। अगर तुम्हें मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छे से पता रहेगा और मैं तुमको फुल हेल्प कर पाऊंगा, क्लियर। ओके, बुक में लिख दो ना, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ डीएसए प्रिपरेशन, क्लियर। बहुत बहुत ज्यादा करना चालू कर दो, स्पेसिफिकली जो टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है उसको और ज्यादा करो बिना शर्माए। कोई तुमको नहीं रोक रहा है। रोज याद है ना जेई के टाइम पे तुम 12th में कितना पढ़ते थे, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। सेम वैसे ही टाइप से फिर से पढ़ना है, बट इस बार पढ़ने से डायरेक्ट 30 to 50 lakhs मिल रहे हैं, तो तुम्हारा माइंड चुपचाप मान जाना चाहिए। लास्ट टाइम तो क्या है, पढ़ने से कोई इमीडिएट तो पता नहीं चलता ना कि 30-50 लाख मिलने वाले हो, तो 4-5 साल दूर की बात है, ये सर नो। इस बार डायरेक्ट मिल रहा है। इस बार क्या मिल रहा है, तो चुपचाप दिमाग को बोलना, कितना भी वो नाटक करे, नहीं नहीं बोलना कि बाद में मजे कर लेंगे, बाद में एक्स्ट्रा सो लेंगे, अब मेरे को 30-50 lakhs चाहिए। कितने लैक्स चाहिए? हाँ, तो चाहिए ना तुमको, यस और नो बोलो। प्लीज करना चालू कर दो, क्लियर। अब हर इंटरव्यू टेस्ट के पहले मुझे बोलना है ताकि मैं पूरा उसका रिसोर्स सर्च करके तुमको पूरा गाइड करके पास करवा दूं, क्लियर। चलो ये हो गया। अब लिखो एलआरओ। अब मैं एलआरओ तुमको ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम ऑलरेडी थोड़ा टाइम प्रोग्राम में स्पेंड कर चुके हो। एल का मतलब कुछ लिंक्डइन कोर्स कौन सा करना है। अब मुझे तुम्हारे लिंक्डइन की कोई आइडिया नहीं है, मैं तुमको 10-15 दिन दे दिए, लिंक्डइन कोर्स करो, मुझे रिव्यू के लिए भेज देना, क्लियर। आर का मतलब रेज्यूमे कोर्स। आर का मतलब कौन सा कोर्स? मुझे तुम्हारे रेज्यूमे की कोई आइडिया नहीं है, रेज्यूमे एकदम अच्छे से बनाओ रेज्यूमे कोर्स के करके और मुझे रिव्यू के लिए भेज देना, क्लियर। ओ का मतलब ऑफ कैंपस कोर्स। ओ का मतलब कौन सा कोर्स? इसको लोग इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तुमको ऑफ कैंपस कोर्स को इग्नोर नहीं करना है, इसको करोगे तभी तो ऑफ कैंपस का रेफरेंस मिलेगा तुमको प्रोग्राम में, और ऑफ कैंपस में भी अप्लाई कर पाओगे। कॉलेज पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना होता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल शो करूंगा मैं तुमको अभी, क्या शो करूंगा, एग्जांपल। जैसे कि एक स्टूडेंट है, लाइक अगर अपने सिलेक्शन वेबसाइट में जाएंगे, ये मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाल के रखा है। ये देखो, ये जो स्टूडेंट है ना, हसन उस्मानी, दिख रहा है तुमको मेरे स्क्रीन में। ये डीटीयू का या फिर तो एनएसयूटी का मेरा स्टूडेंट था, ठीक है। 2024 या 23 ग्रेड था। इसको ना डीटीयू एनएसयूटी दोनों बाजू बाजू में और दोनों में सेम ही टाइप की कंपनीज आती है, राइट, बहुत सिमिलैरिटी है, राइट। तो उन दोनों में से कोई एक कॉलेज में था ये मेरा स्टूडेंट, 2-3 साल पुरानी बात होगी, 1-2 साल पुरानी बात होगी। तो इनको ना अरिस्ता नेटवर्क में 18 एलपीए का ऑफर लगा था। कितने एलपीए का लगा था? इनको अपनी कॉलेज में ही लगा था, जो डीटीयू थी या फिर तो एनएसयूटी थी। बट लगने के बाद उनको लग गया था लाइक मई में, बट उसके बाद भी मैंने इनको फोर्सफुली बोला कि नहीं, तुम ऑफ कैंपस में ट्राई करो। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इन्होंने पूरा ऑफ कैंपस कोर्स किया, रेफरल वगैरह सब यूज किया, और इनको क्या मिल गया, 40 एलपी ऑफ कैंपस एचडी ऑफर फ्रॉम सेल्सफोर्स। तो कॉलेज से भी बेटर बाहर मिल गया ना डीटीयू का होने के बाद भी, राइट, यस और नो। यस सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफ कैंपस को दिमाग से मत निकालो। आई नो कि तुमको अभी ऑफ कैंपस कोर्स नहीं करना है, बट 2-3 महीने बाद जब सारी महंगी कंपनी चली जाए, जो भी तुमको मिल चुका हो, तुम फिर प्लीज ऑफ कैंपस से फोकस अपना बढ़ा देना, क्लियर। और अभी भी तुमको ब्लाइंड नहीं होना है। क्या नहीं होना है? मतलब समझो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन कॉलेज में आ रही है, बट तुमको पता है ऑफ कैंपस में उबर का फॉर्म चल रहा है, तो प्लीज उधर भी अप्लाई करना मत भूलो, भले ही वो ऑफ कैंपस हो, कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है, क्लियर। ठीक है। अब सैटरडे संडे ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होती है, तो माइंड फ्री करने के लिए वहां पर जाया करो, तुम्हारे लिए सही है, क्लियर। ठीक है, ये वाली भी चीज हो गई, वाली भी चीज हो गई। अब मैं तुमको कुछ पर्सनल मैसेजेस भेजूंगा व्हाट्सएप पर, जो तुम्हारी सिचुएशन के लिए होंगे कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कोडिंग इंटरव्यू एटिक्वेट कैसे फॉलो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब
डेवलपमेंट में तो मुझे बताओ, क्या तुमने डेवलपमेंट ज्यादा करी है और कौन से टाइप के प्रोजेक्ट है रेज्यूमे में, कुछ बता सकते हो? तुम कह रहे हो कि तुमने बेसिक ही किया, ज्यादा नहीं किया, राइट? मैं कहूंगा तुम प्लीज टाइम निकाल के यहाँ पर M1 M2 R1 डाल दो। क्या डालोगे? M1 M2 R1, 2 मंथ के प्रोजेक्ट, एक रील का प्रोजेक्ट, अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स 250 घंटे का, लाइक अभी 500 घंटे का भी हो जाएगा, फुल्ली अपडेटेड है। उधर जाओ, M1 M2 R1 के प्रोजेक्ट डालो, उनको समझाना सीख लो और इंटरव्यू को कैसे समझाना है वो सीख लो। डेव मेंटर तुमको मिलेगा ये सैटरडे, एकदम डीपली समझा देगा इसके बारे में। क्लियर? और तुम प्लीज अभी एसडी इंटर्न आईटी जॉब एक्सेस डालना चालू करो ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस सबको पता चले। क्लियर? सो लाइक तुमने एसडी इंटर्न करी है, लिंक्डइन रेज्यूमे डिक्लेयर करो 3 मंथ्स की रिमोट एसडी इंटर्न। क्लियर? और ये सब कैसे करना है वो तुमको पता होगा, डॉक्यूमेंट्स तुमने देखे होंगे, अभी एग्जीक्यूट भी करना। हाँ, लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट करना भी चालू करो और ये डेव की चीज को बढ़ाओ, हाँ, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। क्लियर? ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख दो, प्लीज हैव, लाइक जैसे मैं लिख रहा हूँ तुम भी लिख दो, प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। ये चीज लिख दी तुमने? हाँ। अब लिखो प्लीज डोंट गेट डिप्रेस्ड। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो DTU NSU वाले होते हैं ना, उनका माइंड बहुत अच्छा होता है, ब्राइट होता है, तभी तो उन्होंने जेई मेंस में अच्छा मार्क्स लाया था। यस और नो? बट वो सब एकदम डिप्रेशन में ही घूमते हैं फाइनल ईयर में। क्यों? क्योंकि वो खुद का माइंड नहीं देखते, वो लोग सिर्फ जा जाके चेक करते हैं कि उसका कौन सा दोस्त और दोस्त एक्वेंटेंस को कहां पर जॉब लग गया और किसका किधर सिलेक्शन हो गया। वो बार बार दूसरे का ही देखते रहते हैं। किसी को अमेजोन गूगल में लग गई जॉब जो उसके दोस्त का, उसको भी देख के वो दुखी होगा। वो सिर्फ दूसरों को देख के दुखी होता है, उस चक्कर में उसकी खुद की एनर्जी पावर खत्म हो जाती है। ये बात तुमने बहुत कॉलेज में देखा होगा कि बार बार लोग दूसरे को कितना जॉब लगा यही बात करते हैं। यस और नो? तो तुम बुक में लिखो प्लीज इग्नोर अदर्स। मतलब जब तक तुमको खुद को 10-15 लाख का मिनिमम जॉब नहीं लग जाता ना, तब तक आंखें वाखे सब ब्लाइंड, यू हैव टू पुट ब्लाइंडर्स ऑन एंड यू डोंट हैव टू सी कि दूसरे लोग कितना जॉब लगा है। कोई बताता नहीं तो बोलने का ठीक है मैं बाद में बात करेंगे, निकल जाने का। सिर्फ ये देखने का मेरे को 10-15 लाख मिल रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा दिमाग का पावर इसमें लगा लो कि मुझे वर्स्ट केस में 10-15 लाख कैसे मिलेगा, कहां से लाऊं मैं पैसे, ये दिमाग लगाओ और पैसा लाने का पूरा कोशिश करो, मतलब जॉब क्रैक करने की कोशिश करो। क्लियर? दिमाग का 101% एनर्जी कहाँ लगना चाहिए कि मैं कैसे करके कोई ना कोई कंपनी का महंगा जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लूं, बाकी सब जाए भाड़ में। जितना भी कंपैरिजन करना है कब करना, जब खुद के पास कुछ हो। अब जब हम खुद 0 LPA पे तो दूसरे को कंपेयर करके दुखी होगा। यस और नो? इसलिए जब तक खुद के पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है तब तक नहीं देखने का दूसरे को। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समझो तुमको इंडिया में बहुत रीच होना है। इंडिया में क्या होना है तुमको? अब कोई बंदा है जो साल का 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 3 4 5, कोई मुकेश अंबानी बन चुका है, सब अलग अलग टाइप के लोग हैं। अब तुम हो, समझो एक पर्सन है वो सीधे रोड पे रोज सो रहा है। अब जो बंदा रोड पे सो रहा है, इसको क्या इनसे कंपेयर करना चाहिए 1 2 3 करोड़ वालों से, कि इसको इनसे कंपेयर करना चाहिए जो 15,000 पर मंथ कमा रहा है? बोलो। 15,000। तो जापान जापान जिस लेवल पर होता है उतना ही कंपैरिजन रखना है, बाहर खोल खोल के सबका मत देखना जब तक खुद को 10-15 लाख की जॉब नहीं लग जाती। क्लियर? और कंपेयर करना भी तो उसके साथ करना जिस दोस्त को जॉब नहीं लगा। क्लियर? अब वो भी करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा ध्यान खुद पर रखना। अब ये हो गया। अब लिखो डिप्रेशन वीडियो। ये सब बातें समझ आ जाती है बट नेक्स्ट दिन आदमी भूल जाता है। तो मैं तुमको स्पेशल डिप्रेशन वीडियो दूंगा जो 2026 ग्रेड के लिए बना हुआ है। जब भी तुमको बहुत दुख होता है, लगता है जिंदगी खराब है या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुमको ये खोल के देख लेना है। क्लियर? अब लिखो नेवर कंपेयर विद अदर्स कोडिंग प्रोफाइल्स एंड रेटिंग्स। आजकल सब एआई से छाप छाप के अपना रेटिंग बढ़ा दो, वो भी बिल्कुल देके कंपेयर नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, ये वाला चीज भी हो गया, वो वाला चीज भी हो गया, LRO भी हो गया। हाँ, अब CS फंडामेंटल नाम की चीज तुमको आती है कि नहीं आती? कि तुम इलेक्ट्रॉनिक वाले हो इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। तुमने पढ़ा कि छोड़ दिया इसको? ऊप्स होता है इसमें। हाँ, तो तुमने बाकी सब नहीं पढ़ा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। बुक में लिखो, ये सब पढ़ना चालू करो। इंटरव्यू में पूछते हैं, पता है कि नहीं पता, ये सब पूछते हैं। ऊप्स, DBMS, OS, SQL। ये प्लीज हमारा CS फंडामेंटल कोर्स खोलो और इसको पढ़ो। क्लियर? कोई कोई कंपनीज हो सकती है जो तुमको LLD और डिजाइन पैटर्न पूछ ले, जो नहीं पूछा जाना चाहिए।
अगर ऐसी कोई कंपनी होगी तो हमको बता देना, हम तुमको 2 दिन पहले ही पढ़ा देंगे। तब तक ये सब मत पढ़ो, इसके कोर्सेज है मत पढ़ो, वेस्ट होगा टाइम। जनरली डीएसए ओएसीपी और सीएस फंडामेंटल से काम बन जाएगा, और थोड़ा बहुत डेव से। क्लियर? डेव में भी मैं तुमको कहूंगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट जितने भी टेक्नोलॉजीज होते हैं, इनके अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स पूरे डीपली करके चले जाना। क्लियर? ठीक है, अब कितने घंटे क्या करना है वो लिखो। तुम पूरा दिन क्या फ्री होते हो पढ़ने के लिए? लिखो 5 to 8 आवर्स मंडे टू फ्राइडे डीएसए ओएसीपी को देना है। लिख दिया? और एक चीज लिख दो कि सैटरडे संडे 5 to 8 आवर्स फिर से डीएसए करना है, बट विद रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे जितना भी जिंदगी में पढ़ा था। क्लियर? ये वाली भी चीज हो गई, वो वाली भी चीज हो गई। अब 1 आवर रोज सीएस फंडामेंटल कोर्स करोगे। देखो तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भूल जाओगे चीजें अगर ये नहीं करोगे तो। 1 घंटा रोज कौन सा कोर्स करोगे? ठीक है, सैटरडे संडे 1 घंटा एलआरओ भी करना, लिंक्डइन रेज्यूमे ऑफ कैंपस कोर्स। नहीं तो हो सकता है शॉर्टलिस्टिंग ना हो कॉलेज में, 1 घंटा रोज एलआरओ। क्लियर? ये भी हो गया, वो भी हो गया, और 5 घंटे डेव करोगे सैटरडे संडे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर खोल देता हूँ अपना, एक सेकेंड। हाँ, लिंक्डइन नहीं, लिंक्डइन मैंने ओपन किया तो यहाँ पर तुमको दिखता ही है कि मैं रोज सिलेक्शन रहता हूँ। यस और नो? अभी यहाँ पर 4-5 महीने बाद तुम्हारा सिलेक्शन पोस्ट आना चाहिए, और मिनिमम 1-2 महीने बाद। ये बात भी तुम जानते हो? यस और नो? ठीक है, अब ये चीज भी हो गई, वो चीज भी हो गई। अब मुझे व्हाट्सएप पर हाई भेजो, अब मैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और मटेरियल भेजूंगा तुम्हारे लिए, तो उधर